All right. So last time we discussed or we introduced root locus, and we could let's say probably have some understanding what a root locus actually means. So we saw the definition that it is nothing but a graphical presentation of closed loop poles as the system parameter is varied. Okay. And we saw that the main advantage with root locus lies actually with the higher order systems with order more than two, where we can actually you know determine its say transient response and let's say the stability and other parameters just graphically without evaluating much. Though those things can be evaluated later on and then confirmed with the graphical analysis that we have done. The powerfulness of this method actually lies in order more than two, and this is very important to understand that root locus is actually about closed loop poles. So it's like the movement of closed loop poles as the parameters are varied. Like generally, we vary the gain of the controller. So while changing the gain of the controller, how does the roots or the the I would say closed loop poles change? So that representation is given by the root locus. Now, how do we sketch this root locus is an important thing. And before that, we can just talk about some basic, let's say, properties of root locus. I'll just put it again in the camera form. So, so we know that the transfer function, closed loop transfer function of any controller, the general representation is given by this. दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है TS, which we call as closed loop transfer function of a controller whose forward part transfer function is GS, and it has a feedback loop, a non-unity feedback in the form of H of S, and it has a gain K, the forward path. So this is the transfer function, how it will look like. Now, if we look at the denominator, which is the characteristic equation for us in the control analysis, the denominator is 1 plus K G of S H of S, and whereby we make it understand that this K impacts the poles, so that's why we cannot just increase the gain arbitrarily, but it will have an impact on the stability and even on the transient response of the systems. So therefore, this K will have an impact, and it has to be evaluated. Now we know that the denominator is the equation, the characterization from which we get the closed loop poles, isn't it? And this pole, what we call as S, let's say a pole S will exist if this goes to 0. It means 1 plus K G of S H of S goes to 0, because that's how we evaluate the characteristic equation. आपने जो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी, जैसे आ रही थी s square plus 2as plus omega n square वगैरह जो भी है, या 2 zeta omega n plus omega n square. So that was a second order equation, but we would evaluate for s by putting this whole equation to 0. So that's how this is written in a more general form. So 1 plus K G of S H of S is nothing but the characteristic equation. This equal to 0 means if it is equal to 0 for a particular value of S, then that S actually is the pole of the or the closed loop pole of this system. Is it clear? So you can say a pole exists if this goes to 0. That is true. So it could be any other value of S, but that will not satisfy this equation. So that means that will not be the pole. That is, let's say any value of S, but that's not the pole, because that doesn't satisfy the characteristic. ये ऐसा ही हो गया कि किसी पॉलिनोमियल के कुछ रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, वो रूट्स ही सेटिस्फाई करेंगे ना इस कंडीशन को. अगर वो इसके रूट्स नहीं होंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे. Now this can be written now like this. Let me put it step by step so that it's clear to you. So we have K G of S H of S is equal to now minus 1, because 1 plus K G of S H of S is 0. So we can say K G of S H of S is equal to minus 1. All right. What it means is that G of S is nothing but a complex function. H of S is a complex function. K is nothing but a scalar. It's a gain. So let's not worry about K here.
So g of s, h of s is a complex function. Another complex function will again be a complex function, and if substituted for s, will lead to a complex number. So this whole on the left hand side is equal to -1. So if this left hand side is a complex number, the right hand side also has to be a complex number. Clear? But we can see it clearly that this is not written in the form of i's and j's. Rather, this is kind of written in the form of some, let's say, maybe it doesn't have any imaginary part here in this case, but in this case we can say that it is like in a more of a polar form, where we have the magnitude and the direction. So -1, if I want to write on the complex plane, where does it land up? Can anybody tell? hmm? -1, अगर मैं पोलर फॉर्म में इस तरह एक बनाऊंगा कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसका एक रियल इंटरसेप्ट, सॉरी रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इसका 1 2 3, ठीक है, ये जे ओमेगा पे 1 2 3, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव है, -1 -2 -3, तो -1 का मतलब ये, isn't it? So if I want to depict this vector in terms of the magnitude and direction, which is the polar form, then its magnitude is, what is the magnitude of this vector? 1. नहीं, -1 इसकी डायरेक्शन को लेकर है, -1 इज अ वेक्टर, लेट्स से, सो 1 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा ना, क्योंकि -1 प्लस 0 j होगा, है ना, तो √1 -1 का होल स्क्वायर, जस्ट 1, ठीक है। और डायरेक्शन इसकी क्या आएगी, या सॉरी एंगल, जिसको हम कहेंगे, हमें इस तरह लिखना है ना, m, इस तरह इसको लिखना है हमें, m आएगा 1, एंगल आएगा 180, ठीक है, क्लियर? अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, इसका एंगल अगर मैं निकालना हो, कैसे निकालते हैं? मुझे अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -1 दिया है, इसका क्या मतलब है? -1 प्लस 0 j, है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्लियर? इसकी डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे हम? जीरो बाई क्या होगा वो? हाँ, देखो ये जो है ना, ये जनरली, ये हम अगर आप, हाँ, इसके समझने के दो तरीके हैं। या तो ये है कि देखो, बेसिकली अगर हम डायरेक्ट इसी से देखें, अगर हम इसको ग्राफ पे ही बनाएंगे, सपोज अगर -1 है इस तरह, ठीक है, मेजर तो सीधे हम ऐसे ही करेंगे, हम कह सकते हैं ये 180 है, ठीक है। और अगर हमारा सपोज इस तरह होगा, तो हम सीधे कहेंगे कि 90 है ना। या इस तरह अगर होता हमारा 1 +1, तो हम कहते हैं ये 0 डिग्री है ना। ये 0 और 180 में कैसे, ये मतलब ना, व्हाट इज द, हाउ डू वी गो फॉर दिस? ये जो tan की इक्वेशन है ना, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है tan थीटा? अच्छे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसे इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, ये हमारा थीटा है, तो ये इक्वेशन यहाँ वैलिड है। जैसे हम इस क्वाड्रेंट में जाते हैं, यहाँ वाले क्वाड्रेंट्स में, ठीक है, क्लियर है? इन क्वाड्रेंट्स में दिस इज वैलिड, बट इन दिस क्वाड्रेंट्स वी कैन नॉट राइट इट दिस वे, ठीक है। जो आपने ये भी आपने पढ़ा होगा, ये बेसिकली इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, हाँ, सो इट्स लाइक दैट, हाँ, so it's kind of like you have to basically add a pi, or you can say pi minus theta is equal to this thing, ठीक है, because you are actually changing the signs here, the sign remains here, but here again you go this way, in this way, there is इसको आप थोड़ा सा अपनी मैथमेटिक्स थोड़ा सा ब्रश अप कीजिए। तो ये जो टेंजेंट फंक्शन है, इसमें अगर आप ले जाएंगे इस क्वाड्रेंट में, अगर आप इवेलुएट करना है, तो यू कैन नॉट जस्ट यूज दिस वन,
you have to actually go for 180 plus this thing. ठीक है. So in this case if we say this tan inverse ये जो है plus 5 होगा ये. ठीक है. So theta is equal to tan inverse this divided by sorry plus 5. क्लियर. और अगर आप बाय इंस्पेक्शन ही देखेंगे तो ऑब्वियसली ये 180 भी है. ठीक है. थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स इसकी मतलब ब्रश अप कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की. व्हाई दिस टेंजेंट फंक्शन इज एक्चुअली इन दिस फॉर्म ऑन द इन द सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. फिलहाल मुझे थोड़ा सा आपको इसका आइडिया देना था ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे. तो इसका मतलब जो हम कमिंग बैक टू दिस लेट्स से KGSHS कौन सा वो मैं रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है, मैं उसी में दे दूंगा आपको. असल में ये पार्ट जो है ना ये पार्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में, ये लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं. तो मैं आप ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी बेसिकली 11th-12th की बुक निकाल सकते हैं. जियो फाइबर लग दी थी. मैं मुझे लगता है हेडफोन लगाऊं. कभी एक्टिव हो जाता है इसमें. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक रूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आप थोड़ा रिविजिट कीजिए. ठीक है. असरार थोड़ा सा उसको एक बार रिविजिट करो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स को. सो इट्स वेरी बेसिक. the trigonometric functions about tan, these functions generally जैसे have अगर आपने देखा होगा इनके ग्राफ्स को भी tan के इन्फिनिटी जाते हैं और जीरो पे जाते हैं. tan 0 is 0, tan 90 is what इन्फिनिटी कब जाता है tan का फंक्शन 90 पे ही जाता है. वैसे वैसे बनते हैं ना एजिम्पटोट्स. एजिम्पटोट्स बनते हैं ना. ठीक है. और 180 पे क्या होगा फिर 0 है ना. और फिर 270 पे हाँ. ठीक है. तो वेर साइन का आप देखेंगे साइन 0 क्या होगा साइन 90 और साइन 180 0 और साइन साइन क्या बोलते हैं 270 -1 और फिर साइन 0 साइन साइन 360 फिर से 0 आता है. ठीक है. तो ये थोड़े से आप रिविजिट कीजिए, ये इसमें आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा tan का देख लो. tan का 180 के बाद ही हमारे ये बेसिकली उसके अंदर आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को ब्रश अप करके. मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ वो डॉक्यूमेंट. फिलहाल हम इसको देखेंगे. विल फोकस ऑन दिस. हाँ जी. हाँ ये तो बाय इंस्पेक्शन है. इंस्पेक्शन से तो ठीक है. तो मुझे पता था. मैं कह रहा था इफ आई वांट टू लेट्स से क्लियर इट विद दिस द बेसिक फार्मूला जो इसकी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर. उस वजह से मैं ये बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू एक्चुअली लुक इनटू दिस. So you can look into the complex numbers and trigonometry वगैरह इसकी related जो formulas हैं उसमें why does this happen. This is very basic. ये आप सर्कल की डेफिनेशन से ही देखेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में why does these things happen. You have studied these but probably I also am not much remembering it now. But it's not something like very difficult to understand. It's very basic. You can look for any basic book on trigonometry and complex functions. ठीक है. So what does this mean now is that this -1 is nothing but in this form m and angle form, that it is having a magnitude of 1 and it has the angle as 2k plus 1 into 180 degrees, which means for k is equal to 0 1 2 plus minus, if you substitute it, it will be always to the 180 degrees. For k is equal to 0 it will be 180 degrees. K is equal to 1 it will be 3 into 180 degrees, which means again it is this part. ठीक है.
Because if I use just a multiple of k, and it means you can have 360 also, but that will not actually be this one, which I am actually putting up as -1. So -1 will always be valid for 180 and odd multiples of 180, isn't it? But even multiples of 180 will make it 360, which will make it 0, which is not the correct, let's say, right hand side, because we have -1, so it has to be minus 180, sorry, 180, or it has to be 360 plus 180, which is 440. 60 plus 180 is 460, sorry, 460 and 540. All right, so that's why this will be an odd multiple of 180 degrees. This is the polar form of -1. Is it clear? हाँ जी, ये पार्ट क्लियर है. Which means that KGSHS जो यहाँ पर हमने लिखा is can be written this way, is +1, जो भी हमारा या sorry 1, angle of 2k plus 1 into 180, similar to this. Now we have seen that the value of S is a closed loop pole. This S in this case जो भी हम substitute करेंगे, कोई भी S वो closed loop pole हो सकता है तब जब हमारा इसका मैग्नीट्यूड जो है KGSHS का 1 होगा, जो यहाँ पे पता है. ये यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है KGSHS, इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसकी डायरेक्शन ये है. ठीक है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना लेफ्ट हैंड साइड तो हम क्या करते हैं, हम मॉडुलस में दिखाते हैं इस तरह. ठीक है, फॉर्म में, which is KGSHS का मैग्नीट्यूड should be equal to this part. ठीक है, और इसका एंगल जो होगा KGSHS का, that should be an odd multiple of 180 degrees. ठीक है, so now from this or from above this one can say that k को, since k is a scalar, so k can come out, so k is equal to 1 by g of s h of s. क्लियर? इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी पोल है जिसको हमें टेस्ट करना हो कि ये क्लोज लूप पोल है कि नहीं, वी कैन सब्स्टिट्यूट इट हियर. ठीक है, लेट्स से इन दिस केस हियर, and for a particular gain we can check whether this is equal to 1 or not, and also substituting here it should lead to an angle contribution of a multiple of 180, an odd multiple of 180. Clear? Now we can, if we know the pole now, let's say if it is a closed loop pole, suppose now it's a closed loop pole, what is the value of gain, let's say, so we can determine it from here. K is equal to 1 by g of s h of s, where we substitute that closed loop pole in this. इसका मतलब root locus जो होगा, which is nothing but the locus of closed loop poles as the gain is varied, जो रूट लोकस हमारा होगा, जो हमारी जो वो पाथ होगा, जो रूट्स का जिसको हम कहते हैं रूट लोकस, जो पाथ होगा हमारा, उस पाथ पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट होगा, वो हमारा क्लोज लूप पोल है. और उस क्लोज लूप पोल कहीं पे भी अगर हम रोकेंगे इसको, कहीं पे भी हम टेस्ट करना चाहेंगे, उस क्लोज लूप पोल पे गेन क्या है वो हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से. ठीक है, ये हम एक प्रॉब्लम से भी इलस्ट्रेट करेंगे. एंड दिस नाउ कैन बी रिटन दिस वे, is equal to 1 by m, जो हमने लास्ट टाइम लिखा था. ठीक है, nothing but the magnitude, m denotes the magnitude which is given by modulus of these two, and it's nothing but the product of the pole lengths, product of the zero lengths. अगर आप लास्ट टाइम देखेंगे जो हमने इक्वेशन लिखी थी, m was actually the product of zero lengths by product of pole lengths. So अभी ये 1 by m हो गया because हमने k को लिखा 1 by this, so obviously k is nothing but the product of pole lengths divided by product of the zero. ये हमने लास्ट टाइम एक जगह डिफाइन किया था ऑलरेडी, यहाँ पे यहाँ पे हमने लिखा था f is equal to fs is equal to this, zeros divided by poles. So fs was the product of numerators complex factor which was zeros, and product of complex factors in the denominator which are poles. So product of zeros divided by product of poles was fs, the magnitude of fs, f of s, which in this case we can write this way, product of zero lengths divided by product of pole lengths. ठीक है, is it clear? g of s h of s क्या होता है, फिर से बताओ.
नहीं नहीं, एफ ऑफ एस तो एक जनरल फंक्शन है। नहीं नहीं, जी ऑफ एस एच ऑफ एस क्या होता है आपको अब जबान याद होना चाहिए। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, अच्छा ना, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये आपको मैंने इससे पहले भी बताया था लास्ट टाइम। मैं थोड़ा मेरे पास नोट सामने में देखिए कि जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज नथिंग बट ओपन लूप ट्रांसफर, उसको नाम दिया गया है ऐसा। अदरवाइज जी ऑफ एस इसमें फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है, ये फीडबैक है क्योंकि लूप का यूज किया लेकिन बट इट्स नॉट क्लोज लूप, सो दैट्स व्हाई वी refer it to by as a loop gain or open loop transfer function. This is because this is used quite often, so that's why we name it something like that. Otherwise it doesn't have any physical significance. ठीक है, so k is nothing but 1 by g of s h of s, and this can be written as 1 by magnitude of all this. This magnitude can be written by product of zero lengths divided by product of pole lengths. ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा इस प्रॉब्लम से इलस्ट्रेट करते हैं. यू कैन टेक दिस विद योर नोट्स इन फ्रंट. राइट डाउन दिस ट्रांसफर फंक्शन g of s is capital K s plus 2 s square plus 4 s plus 13. जरा इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा कोशिश ट्राई कीजिए. लिखा आप लोगों ने? हाँ जी, आप में से किसी ने लिखा? जरा इवेलुएट करो इसको. मैं बीच बीच में अटेंडेंस करता हूँ खुद ही ना इसमें स्नैपशॉट लेके, तो मेरे पास गूगल मीट का डॉक्यूमेंट खुलता है, तो आप लोग थोड़ा सा रेगुलर रहिए, ऐसा ना हो कि कोई मीट छोड़े. So we have been given a transfer function, the forward part transfer function, and we were supposed to evaluate the angle of g of s at point this. तो हमें g of s एक फंक्शन दिया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये, उसको एक पॉइंट पे हमें इवेलुएट करना है, उस पॉइंट पे हमें उसका एंगल निकालना है सपोज, और हमें बताना है कि या ये पॉइंट इसके रूट लोकस पे है कि नहीं, और अगर ये रूट लोकस पे है तो इसका गेन जो है उस पॉइंट पे क्या है. हाँ जी, जरा अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ फिलहाल. अनीस एजाज, अनीस एजाज सोए हो? अनीस एजाज वो छुते अकलास गुम ऑलरेडी. फाजिला फिरदौस, फाजिला फिरदौस, फाजिला फिरदौस. हाँ जी, आप अटेंड कर रही है लेक्चर? लेक्चर अटेंड कर रही है? मैंने 3 बार बुलाया आपको, आपको इतना टाइम क्यों लगा? ठीक है, म्यूट करो. आकिब भट्ट, इस्माइल, इस्माइल, समझा इवन, इरफान, फैजान अहमद, एंगल. और बताओ जरा, बाकियों को ट्राई करने दो. फैजान अहमद भट्ट, फैजान अहमद, फैजान, फैजान अहमद. ये फैजान अहमद कौन है, सो रहा है? फैजान मंजूर. हाँ, लेकिन 4 फैजान है आपकी क्लास में.
फैजान मंजूर दूसरा, ठीक है। वो बाकी फैजान तो मुझे लगता है वर्चुअली है, कुछ नकली। फलक फातिमा, फतेह मोहम्मद, हिलाल, उजैफ, उजैफ, इचू रिकॉर्ड शोरी कसा, इल्हाम, मुजम्मिल, जुनैद लतीफ, मुसैब, मुजम्मिल इतू एबसेंट, लोन मुसैब, महरूज, दानियाल, ये बोजान चुके लेक्चर है कि मोहम्मद उमर, मुर्तजा, कासिदा, सबा, सरमद, शाह ओएस, शारिक पीर, शेख उमर, शारिक पीर एबसेंट, जो पदवाना यासर, सोबिया रहमान, सुहेल हैदर, तहलील, उस्मान, यासिर, जाहिद, जाहिद मजीद। हाँ जी, अब बताओ किसने किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व, और किसी को आया? जरा और बताओ कुछ एक दो आंसर्स। क्वेश्चन तो मैंने अभी रखा ही है इस पे, स्क्रीन पे ही है। सोल्यूशन तो मैं दिखाऊंगा इसके बाद ही, लेकिन आप पहले मुझे देख रहा था मैं, आप कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको मौका मिलना चाहिए ना कोशिश करने का। इसमें आपको क्या करना है, एंगल ऑफ जीएस ढूंढना है, ठीक है। एंगल ऑफ जीएस मतलब अगर हम सब्सिट्यूट करेंगे एस को -3। इसमें बताओ इसमें जीरोस क्या है? पोल्स, हाँ। तो इसमें मैंने पहले वही किया, मैंने पहले जीरो और पोल्स को निकाला, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसमें जीरो और पोल को इसके निकाला। सपोज जीरो एट माइनस -2 एंड पोल्स दिस। और ये आप याद रखिएगा कि ये कौन से पोल्स हैं, नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं, ये मतलब क्या ओपन लूप है कि क्लोज लूप है? ये ओपन लूप पोल्स है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये ओपन लूप पोल्स है, ठीक है। तो हमने s² + 4s + 13 लिया इज इक्वल टू 0, उससे हमने निकाला, हमें मिल गया पोल्स -2 + -3j, ठीक है। अब अगर इसको मैं पहले थोड़ा सा इस तरह देखूं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करूं, ये इस तरह आएगा। ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, द रियल एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज द जीरो विच आई कैन डिपिक्ट बाय -2 विच आई कैन, यहाँ पर -2 है, इसको मैं सर्कल से डिनोट करता हूँ, तो ये -1, ये -2, -3, -4, -2 पे 0 है, तो मैंने यहाँ पे सर्कल किया। और पोल कहाँ पे है, ओपन लूप, -2 + 3j, -2 -3j, तो उसका रियल पार्ट -2 ही है और इमेजिनरी पार्ट इसका 3j है। तो 1 2 3, -1 -2 -3, तो +3j है, तो 1 2 3,
So ये और ये, इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, ये कॉम्प्लेक्स पोल यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा आएगा -2 रियल इंटरसेप्ट, -3j, -1, -2, -3, इसका रियल इंटरसेप्ट आएगा, सॉरी ना, ये लोकेशन आएगा। So I have just drawn the open loop poles and zeros. ठीक है, now I am giving a point of interest where I want to see what is the value of the function. So what is that point? -3 plus 0j, -3 plus 0j, ये कहाँ पे होगा? इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, इसका रियल पार्ट -3, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट है ना। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद होगा, मैंने जो ये वाला आपको दिखाया था ना, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला लास्ट टाइम, है ना, हमने इसमें निकाले थे पोल्स और जीरोस, फिर हमने देखा था पॉइंट ऑफ ना इंटरेस्ट कौन सा है, -7 + 9j, वहां तक हमने ये काइंड ऑफ वेक्टर्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, इन सब का टुगेदर कंट्रीब्यूशन आएगा इस फंक्शन का वैल्यू एट दिस पॉइंट। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर भी करूं, तो ये मेरा एक पोल है, दूसरा पोल है और एक जीरो है, तो मुझे यहाँ से एक लाइन ऐसे डालनी है ना, एक वेक्टर यहाँ से एक वेक्टर ऐसे डालूंगा और यहाँ से एक वेक्टर ऐसे डालूंगा। उन तीन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है, और उनका एंगल कंट्रीब्यूशन वही आएगा इस फंक्शन का वैल्यू, है ना। सबसे पहले हमें एंगल ढूंढना था, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट करेंगे, इसको भी मैंने प्लॉट किया है इस तरह। देखिए, मैंने यहाँ पे -3 लिखा और यहाँ से एक एरो डाला, यहाँ से एक एरो डाला इस तरह, यहाँ से एक एरो ऐसे डाला। तो जो हमारी डेफिनेशन है एंगल की वो ये है, रियल इंटरसेप्ट से देखना है, तो ये हमारा एक वेक्टर है, रियल इंटरसेप्ट से हम जाएंगे इस तरह, तो ये 180 आएगा, सपोज ये θ1 है, और ये जो हमारा आएगा पोल और इसकी जो वेक्टर बन रहा है अप टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लेंगे, ये एंगल होगा। इसी तरह जो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इस पोल का, उसका भी हम हॉरिजॉन्टल जो हमारी एक्सिस है या रियल इंटरसेप्ट की जो एक्सिस है, उससे हम ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, तो ये आएगा θ3। तो हमारा जो थीटा जो हमें ढूंढना है वो क्या आएगा, जरा आप बताओ, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो शुरू में सबक याद ही करा, तो इनका क्या चलेगा, करना कर इतने लेक्चर इसमें तो हो मुझे। पिछला लेक्चर देखो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ईश्वर याद दी डेफिनेशन, ये लास्ट टाइम बताया था ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अगर हमें मैग्नीट्यूड और ये एंगल निकालना हो, तो इट्स लाइक दिस। एंगल क्या है, समेशन ऑफ जीरो एंगल्स माइनस समेशन ऑफ पोल एंगल्स। ठीक है, आप कह सकते हैं न्यूमरेटर एंगल्स और डिनोमिनेटर एंगल्स। ठीक है, इसमें जीरोस कौन से हैं, -2, उसका एंगल माइनस दिस एंगल माइनस दिस एंगल, तो फेल साहब, क्या लग रहा है आपको, ठीक है। जो हमारा जीरो का एंगल है, माइनस पोल का ये एंगल और माइनस पोल का दूसरा एंगल, ये है ना हमारी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से अगर ये 180 है, अगर θ2 कुछ है और θ3 कुछ है, अगर इसको हम बाय इंस्पेक्शन देखना चाहें, तो ये 180 माइनस θ2 माइनस θ3 होगा, है ना। आप में से कोई बता सकता है मुझे θ2 और θ3 का वैल्यू क्या होगा अगर हम ऐड करेंगे? किसने बताया ये, कौन था ये जिसने जीरो बोला? जीरो क्यों होगा? हम्म हम्म हम्म
तो इसका आंसर 180 है। लेकिन अगर मुझे अब तब भी निकालना हो फिलहाल थीटा वन को, तो चलो मैंने देख लिया। थीटा टू को अगर मुझे एंगल निकालना हो, कैसे निकालेंगे? ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा थ्री सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, समझ रहे हैं? थीटा थ्री है ना सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें थीटा फोर थीटा टू थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर है तीनों, दोनों एंगल्स, ठीक है। और इनफैक्ट थीटा वन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर है, तो हमें इनमें सब में वो पाई वाला मैंने बताया था आपको लगाना है। थीटा टू आई विल से इज इक्वल टू tan इनवर्स -3/-1। इसका क्या आएगा? -3/-1। इसका -3 क्यों आएगा? बिकॉज मेरा जो पॉइंट है ना यहाँ पे है, मैं मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? नीचे, नेगेटिव ऑफ दिस, इजंट इट? फ्रॉम हियर आई एम गोइंग डाउन। देखो यहाँ पे अगर मेरा पॉइंट है ना ओरिजिन इसमें, तभी तो मैंने ये डिफाइन किया ना, ये वाला, ये जो डॉटेड मैंने डाला, ये क्या डाला मैंने? रियल रियल एक्सिस का या रियल एक्सिस का मैंने थोड़ा सा डाला है, ठीक है, पैरेलल लाइन एक। I'll have to measure axis from this point rather than from here. I can measure for a rotation, I can measure from the origin, and I need to have some axis. So this real axis I'll kind of shift here for measurements. ठीक है? So then for in that case, if I take this as my coordinate axis, I am going actually to the negative of this, isn't it? Down for this point. और इस point के लिए कहाँ जा रहा हूँ मैं? वापस जा रहा हूँ ना इधर, ठीक है। तो -1 और -3 आएगा +5. This will be 71.5 plus pi is 251.5, which is actually 251.5. आपको by inspection भी लगेगा ये around 200 कुछ है, less than 270 है, ठीक है। इसी तरह थीटा, इसको आप ज्योमेट्री को फिर से थोड़ा सा एक बार देखेंगे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री को और कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक बार आप रिविजिट करेंगे, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसी तरह थीटा थ्री है, tan इनवर्स, इसके लिए ओरिजिन ये है, सो दिस इज +3 and -1, isn't it? +3 and -1, so that's why it will be 3/-1 plus pi लिखना है, so is equal to -71.5 plus pi, which is 108. So from here if we measure it, it's around 108. Now if you add these two, 108 and 251, so it's like 308, sorry 351 plus 8 is 359.9, so it's around 360. So that's why theta 2 plus theta 3 will be 360, ठीक है, and that will just subtract from here, can say, so it will be just 180. So theta will be 180, ठीक है। What was the second question? I just kind of put it on the paper only. Second question was, is the given point on the root locus? कोई भी पॉइंट रूट लोकस पे होने के लिए क्या शर्त है, बताइए? किसी भी पॉइंट को रूट लोकस पे होने के लिए क्या शर्त है, जो अभी हमने डिस्कस की? Magnitude should be 1 and the angle should be नहीं 180 खाली नहीं, odd multiple of 180. ये जरा किसकी माइक आ रही है, पता नहीं कहाँ आप लोग यहाँ तो डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। मैं आप लोग पानते पाई का अच्छू तो ठहरी है, मैं पता करता हूँ ये कौन है। बंद कर दी इसने। ठीक है, सो द कंडीशन फॉर a point
S, ठीक है, and it's a closed loop pole, which means it is on the root locus, because closed loop pole ही root locus पे होते हैं. For S to be on the root locus is that the angle contribution of the open loop transfer function has to be an odd multiple of 180. ठीक है. So if we just check out this one, let's put a sheet on this. We have got the total angle to be 180 because बाकी जो था वो 360, ठीक है. 180 को 360 ऐड करेंगे तब भी ऑड मल्टीपल बनेगा, है ना, या सब्ट्रैक्ट करेंगे. कौन सा नेगेटिव साइन? हाँ, -180 आएगा तो वो भी आएगा ना लेफ्ट साइड की तरफ ही. ठीक है, चलो मैं इसको -180 लिखता हूँ यहाँ पे. मुझे नहीं लग रहा है इसमें -180 आना चाहिए. अगर ये हमारा 251 है, 308 है, टोटल आएगा 360. 180 minus 360 is -180. -180 is nothing but is, again we can say it is on the left hand, on the left side, isn't it? So it is an odd multiple of 180. ठीक है, तो ये 180 जो है हमारा, अगर हम इसको रखते हैं, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, ये हमारा 180 है. ठीक है, तो -180 क्या होगा, है ना. So at the same, so it is correct because we are on the same vector is being defined. तो even multiple of 180 होता है. Suppose 180 plus 180 is 360. That will land us here. That is wrong because our definition is that should be -1 is equal to k g of s h of s. तो अगर ये इवन मल्टीपल होगा तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी बिकॉज वो -1 नहीं आएगा, वो +1 आएगा इवन मल्टीपल. इसीलिए हम लिखते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 180. इसमें अगर k आप कुछ भी डालेंगे ये ऑड बन जाएगा, 0 1 2. ठीक है, k इज जस्ट अ नंबर. +-1 भी रखा है, तो -1 अगर रखेंगे, -2 + 1 इज -1. -1 into 180 is -180. क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया आपको? तो -180 जब ये आ गया हमारा टोटल एंगल कंट्रीब्यूशन of the three vectors on that point, which means that it is by definition an odd multiple of 180. So this means that yes, this point जो भी हमने दिया था ये -3 + 0 j वाला, it is on the root locus because theta is equal to -180. हम लिख सकते हैं is a multiple of, is an odd multiple of 180. ठीक, what was the next point or what was the next question? Find the gain. अब इस पॉइंट पे ये जो s दिया है, क्योंकि s तो बहुत सारे हो सकते हैं फंक्शन के लिए, ये पॉइंट हमने ढूंढ लिया कि ये तो रूट लोकस पे है, लेकिन रूट लोकस क्योंकि डिफाइन करता है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के, क्लोज लूप पोल्स, तो उनमें अलग अलग गेन होगा क्योंकि गेन वेरी करने से वो क्लोज लूप पोल वेरी होते हैं. तो इस पोल पे गेन क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, we'll use the same formula that we have defined. It is 1 by g of s h of s is product of pole lengths divided by product of zero lengths. So इसको अगर हम इवैल्यूएट कीजिए, इसको जरा इसको इवैल्यूएट कीजिए, मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए फर्स्ट स्टेप. So we have 1 by s plus 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 आ गया. इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, s को -3 + 0 j, मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ इसका, करते करते इसका वैल्यू जो हमारा आएगा 10. So at gain of 10, the system has a closed loop pole which is at -3 + 0 j. तो हम इस तरह भी, ये हम जस्ट टेस्ट पॉइंट डाल रहे हैं कोई, वरना हमें जनरली गेन ढूंढना होता है या क्लोज लूप पोल्स ढूंढने होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम को इस तरह आपको समझाने के लिए है कि इसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट. इस टेस्ट पॉइंट, क्या ये टेस्ट पॉइंट क्लोज रूट लोकस पे है कि नहीं,
और अगर है तो उस पर गेन क्या है, तो हमने इस तरह निकाल दिया। ठीक है, आई थिंक दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो यू कैन प्रॉब्ली डू इट योरसेल्फ. K is equal to 10. Now let's come to something that we had to actually discuss as a new thing for this. This is very important, what we call as sketching the root locus. How do we sketch the root locus? We have seen some basic things about root locus, but we call it something called as sketching, and then we have one more thing called as defining the sketch. There are some things about root locus that we need to see carefully. Uh, तो रूट लोकस की स्केचिंग का क्या मतलब? अभी हमने देखा था, अभी तक हमने सिंपल केस देखा है, जहाँ पे हमने अभी लास्ट टाइम देखा था कि एक पोल था 0 पे और एक था -10 पे, और वो मूव कर रहे हैं ऐसे कुछ, और यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं, और वो ऐसे कुछ उसका ना फाइनल रूट लोकस ऐसा बन रहा था। किसी को याद है हमने क्या था ऐसे? हाँ, तो हमने इस तरह इसको बनाया था, है ना? इस तरह रूट लोकस मूव कर रहा है, रूट हमने लिखा था ये इस तरह जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं। तो ये जो लाइंस है बेसिकली, ये काइंड ऑफ इसको हम कह सकते हैं ये रूट लोकस है। ठीक है, दिस इज द पाथ ट्रैवल्ड बाय द रूट्स एज द गेन इज वेरी। तो ये एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। हमारे पास दो पोल्स थे, एक 0 पे एक -10 पे था। तो ये कितने पोल्स थे इसमें? दो पोल्स। ये सिस्टम कुछ ऐसा था, एस प्लस 10 होगा ना ये। 0 से क्या होता है, बी ऑफ एस इक्वल टू दिस। ये तभी हमारा आया था एक पोल 0 पे, एक आया था -10 पे। लेकिन अभी भी आप याद रखिए, ध्यान से रखिए, ये जो पोल्स हैं ये कौन से हैं? ठीक है, वहाँ कीजिए कुछ। ठीक है, ये ओपन लूप पोल्स हैं। लेकिन जो रूट लोकस होता है वो क्या होता है? तो आप लोगों ने सवाल ही नहीं पूछा, फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? हम तो क्लोज लूप की बात करें, ओपन लूप कैसे आ गया फिर? इसका कोई जवाब है आपके पास, या कोई डाउट, क्वेरी आपने पूछी नहीं? अब आपने पूछा नहीं तो आप ही बताओ, फिलहाल मैं ही पूछता हूँ क्वेश्चन आप लोगों से। बताइए। तो यहाँ पे मैंने दो कलर से इसलिए बनाया, मैं तो आपको दिखाना चाह रहा था असल में। ये बेसिकली फिलहाल दो पोल्स हैं, अगर वरना चार पोल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सिस्टम में जितने पोल्स होंगे उतने, ये हम रूल्स पढ़ेंगे, जितने सिस्टम में पोल्स होंगे ना, उतने हमारे पास सिस्टम में बेसिकली जो कहते हैं ब्रांचेस होंगी। सो वी कॉल देम ब्रांचेस। तो एक एक जो ये पोल था 0, ये -10 था, फिर ये आगे चल के ये बन गया, मैं रेड से बना था उसको, फिर ये यहाँ चला, फिर ये यहाँ पहुंचा। ठीक है, एज केबल इंक्रीज, और जो ब्लू कलर का पोल था वो यहाँ पहुंचा, फिर वो यहाँ पहुंचा, फिर वो यहाँ पहुंचा। ठीक है, आगे जाकर वो यहाँ कहते हैं ब्रेक अवे हो गया, तो यहाँ निकल गया, इस तरह ट्रैवल कर रहा है। तो जो रेड वाला था वो यहाँ पहुंच, इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया। ठीक है, तो रूट लोकस ऐसे ही बनता है। इसका कहने का मकसद, अभी हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स को भी समझाने के लिए you can read the books, but I can tell you, but it may take more time. I have to plan up to, probably we're planning by 15th May we should finish your syllabus. So accordingly I have fixed some lectures for this and for the next topic. So I may not be able to go into deep into these things. If you want me to go into deep into these things, then I would ask for an extra class. वो आप तक है, मैं तो फ्री हूँ, जैसे सैटरडे संडे या इस तरह और भी टाइमिंग से, अगर आप लोगों को चाहिए कि एक्स्ट्रा क्लासेस आपको चाहिए। हाँ,
मैं करा सकता हूँ सारी चीजें, पर रहा हूँ तो स्टेट स्पेस थी, मगर मसला चाहिए कि उसके लिए मुझे आप में से वॉलंटरी चाहिए कि कितने लोगों को चाहिए। वो मैं पढ़ा सकता हूँ और हो सकता है वो मैं सिलेबस में ना रखूँ ताकि आपको सीखने को मिले, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहेंगे उनको लिए मैं फोर्स नहीं करूँगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, उसके लिए मैं आपके एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ। मुझे कोई हर्ज नहीं है, जितना आप चाहें मैं उतना ज़्यादा आपके लिए ना टाइम इसके लिए बता सकता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो वो लेकिन आप लोग खुद से ना काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट करके मुझे बताएंगे। सीआर को छोड़िए, आप जिस जो जो इंटरेस्टेड है वो खुद आपस में जो डिस्कस करके मुझे बताएंगे कौन कौन। इनफैक्ट मैं गूगल क्लासरूम पे उसके लिए एक ना पोस्ट करूंगा, तो आप उसमें से मुझे बताएंगे कि कौन कौन अपना ना यस यस करके, ताकि मुझे पता चले कि किस किस को इंटरेस्ट है और कौन सा टॉपिक। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप याद रखें कि मैं कोई आप पे फोर्स नहीं कर रहा। आप इसको ऐसा ना समझें कि दूसरे बाइंड करेंगे और आप चाहेंगे सर नहीं, सर बुरा मानेंगे तो हम भी रखेंगे यस यस, तो ऐसा नहीं है। या आपकी अपनी वो है, आप चाहें तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ। एनीवेज कमिंग बैक, सो रूट लॉकस बेसिकली क्या है? इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ क्लोज लूप पोल्स एज द गेन इज वेरीड। क्लोज लूप पोल है, यहाँ पे मूव कर रहा है, रेड कलर का, ये मूव करके यहाँ पहुंच गया, तो आगे और जा सकता है। क्लोज लूप पोल यहाँ इस तरह ही मूव कर रहा है, लेकिन हमने कहा यहाँ पे ये ओपन लूप पोल है। ठीक है, तो शुरू जो होता है लूप रूट लोकस होता है असल में ओपन लूप पोल से ही। क्यों होता है ये मैं बता सकता हूँ आगे, आपको अभी नहीं बताऊंगा। इसमें इसके लिए सिंपल डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग है, जो बुक अगर पढ़ सकता है कोई या पढ़ता होगा तो उसको ये पता होगा ये क्यों है। बहुत सिंपल है ये, लेकिन जिनको जिस जस्ट इसको सॉल्व करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है, इस टेक्निक को कैसे यूज करना है, उसके लिए इतना समझना है कि ये स्टार्ट होता है ओपन लूप पोल से रूट लोकस। ठीक है, हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये बुक में हाँ। सो ये आप हाँ के इन्फिनिटी और के जीरो डाल के हमें पता चलेगा। इसमें अगर आप सिंपली इसको भी देखेंगे समझाने के लिए, जी एफ एस जो है ना, इसको आप जब हमने निकाला जीरो और माइनस उसके क्या थे, ओपन लूप पोल्स, वो तो फिक्स्ड है, क्योंकि के अगर मैं चेंज भी करूंगा ओपन लूप पोल चेंज होंगे? जरा बताओ कोई आप में से, के अगर मैं चेंज कर रहा ओपन लूप पोल मगर चेंज ना, मैं इफेक्ट ही कराना। वहां अगर मैं क्लोज लूप पोल गॉन्ड छाड़ टी ऑफ एस फॉर यूनिटी फीडबैक इन 1%, 1 + g ऑफ एस है ना। ठीक है, सो ये क्या आएगा, के वे एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस के, आओ ना ये पूछ रहा मैं क्लोज लूप ट्रांसफर की क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना। ठीक है, अगर यहाँ मुझे के राउंड बेस जीरो क्या बनी, बना बेस हुई एस स्क्वायर प्लस 10 बोला एस इंटू एस प्लस 10, वही बन बेती ओपन लूप गो अम साथ इस पोल्स तिम छी यमै के इज इक्वल टू जीरो पर क्या तेल यम छ ना अच वनान ओपन लूप पोल्स के इज इक्वल टू जीरो करो तो फेल सब दिता जीरो ना वनान ये क्या। और जैसे आप के को आप चेंज करेंगे तो पोल्स क्या होंगे, चेंज, है ना। अब जैसे के बढ़ेगा पोल चेंज होंगे, और वो क्या होंगे, वो पोल्स अब क्लोज लूप गो के इज इक्वल टू जीरो तो ओपन लूप पोल सर सेम, तवे मोइन तो यह ना ये पॉइंट ये शुरू करी वो के इज इक्वल जीरो पर शुरू और इट इज आल्सो इक्वल टू ओपन लूप पोल्स। अम पे बाकी से क्लोज लूप पोल्स। ठीक है, के का वैल्यू जैसे कुछ है तो उस पर पोल होगा, सपोज ये और ये, वो क्लोज लूप होगा ना 100%, बिकॉज के इक्वल जीरो पे ही सिर्फ ओपन लूप है। ठीक है, with this background I will probably move to the rules. So you have 5 rules to sketch the root locus using minimum calculation, what we call as 5 rules. Let's look at them one by one. You can just remember these rules. There is nothing difficult in this, but this will give you an idea how do we basically go for root locus sketching. The first is the number of branches of the root locus. Branch is important here. Of the root locus equals to the number of closed loop poles. Is it clear? ये मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया अभी, इसमें कितने ब्रांचेस हो गए थे, आगे वॉजुल ब्लू है ना, क्या ये थे पोल्स है। ठीक है, अगर 3 पोल्स आसन ब्याक पोल आसन तेल छ ब्याक ब्रांच, सो ब्रांच कप सो वुचो अस वुन। ठीक है, पोल है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ठीक है, ओपन लूप पोल, ये करे मूव अम पे तो इसमें वो एग्जांपल हावे ना अम ब्रोट
सॉल्व ये यहाँ में क्या आया बताइए, -2 + 3j -2 - 3j ये क्या था? ठीक है, सही है हमको डिनोमिनेटर को ना इशू ओपन लूप पोल्स ही ओपन लूप पोल्स का तो ये गो अगर ये जाता है ना पगा रूट लोकस बनाऊं आम रूट लोकस के शुरू ये पे ठीक है इत कन पक सो पे करो पक क्या पक वन मकसद अगर राइट हैंड साइड में होगा पोल्स वहां से भी ब्रांच निकलेगी वो हम देखेंगे ना, वहां से भी ब्रांच निकलेंगे। स्विच 100% अनस्टेबल है सपोज नहीं देखो अगर राइट हैंड साइड अभी हम वो देखेंगे वैसे वो केस अगर हमारे राइट साइड में है कोई पोल ठीक है तो ये तो पहले ही पता है कि सिस्टम अनस्टेबल है, लेकिन मसला ये है कि जो हम पोल डालेंगे ना राइट हैंड साइड में पहला वाला सो आज से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा ऐसा ठीक है मगर तम पत प्लॉट तक करो तो पक राइट मजी वो सह 100% क्या के वैल्यू अगर कह फाइनाइट वैल्यू थोड़ी 0.1 तो तम पे पक ना कर्व सो कर्व ये पक गो ना राइट साइड मजी मज पोल ना ये अनस्टेबल मगर तो हेको प्लॉट करने से प्रॉब्लम ठीक है प्लॉट तो हम कर सकते हैं तभी हम बेसिकली वो चीज पढ़ेंगे डिजाइन में ये चीज गए ना करो ना मॉडिफाई पैरामीटर कि सुबह राइट साइड वो शिफ्ट पाने को डिओकन पथ पैक्स रूट लोकस हम रूट्स के साथ ही टैम्पर करते हैं डिजाइन में ताकि सिस्टम अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए। क्लियर? तो पहला रूल इसमें है कि द नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इतना क्लोज लूप पोल्स असे तिथे आसन ब्रांच या तिथे पोल्स ना कि जीरोस ठीक है क्योंकि पोल से हम स्टेबिलिटी असल में निकालते हैं और सारा हमारा इसी पर डिपेंड होता है दो जीरोस आल्सो हैव एन इंपैक्ट। सेकंड इज द रूट लोकस इज सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस गई ये गई रियल एक्सिस ये इमेजिनरी एक्सिस तो रूट लोकस को अगर रूट लोकस है सब जित कहीं ये और त्याची तक ठीक है अगर रूट लोकस है पक्का इत कहीं ये त्याची तक ये और अगर रूट लोकस है पक्का इत कहीं ये पक और पक तक क्लियर। So it will be symmetric about real axis ना कि about imaginary axis imaginary axis about symmetric को अगर यो इसके ना यो इसके कंडीशन मुमकिन नहीं है बल्कि real axis पर ऐसी symmetric कि क्या you can go through the book I'll put this kind of your homework because I want you also to put some efforts this is very simple to understand if you do not understand I can have extra class for this okay that's how I can save time so the root locus will be symmetric about the real axis conjugate को ऐसे होता है। तीसरा on the real axis for k greater than 0 on the real axis for k greater than 0 the root locus exists to the left of an odd number of real axis finite open loop poles and finite open loop zeros ये आपको याद रखनी है डेफिनेशन। इसका क्या मतलब है कि रियल एक्सिस जो है हमारी उस पर अगर हमारे पास कुछ पोल्स होंगे देखो कैसे है ये क्यों है वो मैं बाद में बता सकता हूँ लेकिन फिलहाल इसका मतलब क्या है सिमेट्रिक का मैंने मतलब बताया ब्रांच का मतलब बताया इसका क्या मतलब है थर्ड का कि रियल एक्सिस पे के ग्रेटर देन 0 है रूट लोकस जो है हमारा लोकस जो है हमारी कर्व्स ये कहाँ से होंगी क्या ज्यादा नंबर ऑफ हमारे पोल्स जीरो हो सकते हैं तो सपोज हमारे पास कोई जो ट्रांसफर फंक्शन इस तरह है s+2 s+3 s+5 सपोज या इनटू s सुना भाई ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम ये कितने ऑर्डर सिस्टम है फोर्थ ऑर्डर है ना तो इसका पोल्स कहाँ है ओपन लूप पोल्स ठीक है तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं एक यहाँ पे है -2 -3 -5 क्या कितना वही उस रूट लोकेशन बनाओ ये कत बनाओ बनाओ ना इत कन यमन दोन मंजस कि यमन दोन मंजस कत यह ना you have to be no that's why these rules are there where do we plot these root locus how will these poles move उतान अगर पोल्स z ऐसी तमसा वो सिंपल
आप poles the pole as a message के पान हुई मेरे ठीक है। इस केस में क्या होगा, कहाँ से मूव करेंगे, क्या ये और ये बीच में मूव करेंगे, ये और ये करेंगे बीच में ऐसे, क्या ये और ये बीच में करेंगे, या ये यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। So for that thing, the rules, there is a proper reason for this, but we can say the rule is the real axis पे for k greater than 0, the root locus exists to the left of an odd left side से exist करेगा कहाँ पे, odd number of real axis, finite open loop poles and finite open loop zeros. Odd number of real axis पे जो poles होंगे उसकी बात हो रही है, real axis के poles की. Finite open loop poles and finite open loop zeros. Finite क्यों word use करें, क्योंकि there are infinite poles and zeros also, we'll see that later on. So odd number of real axis poles. Odd number क्या है, ये अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये कितने हैं 1, तो यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा इस पार्ट में. अब क्या है 1 2, ये कितने हो गए इवन, यहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा. मैं उसको ब्लू से बनाऊंगा जहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा. फिर 1 2 3, तो ये ऑड हो गया, ऑड के लेफ्ट में यहाँ पे भी रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा. रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा यहाँ और यहाँ के बीच में, हो सकता है फिर ये ऐसे निकले या कैसे निकले वो अलग चीज है, बाद में वो हम देखेंगे. और इस तरह रूट लोकस बनेगा. इसी तरह अगर हमारे पास अब सिर्फ 1 2 और 3 ही पोल्स हैं किसी सिस्टम में, उसका रूट लोकस कैसे एग्जिस्ट करेगा, 1 ऑड है 1 और उसके बीच में, 1 2 इवन नहीं होगा, 3 इज ऑड, तो ऑड के बीच में यहाँ जाएगा. So this is what it means. और अगर इसमें आपके पास जीरोस भी होंगे, कोई क्रॉस होगा फिर जीरो होगा फिर क्रॉस होगा, नहीं सॉरी पोल होगा फिर जीरो होगा, इस तरह कुछ होंगे, तो आप ये करेंगे काउंट, ये पोल सॉरी 1 यहाँ एग्जिस्ट करेगा, 1 2 इसको ऐड करना है, 1 2 ये इवन है, 3 यहाँ ऐड, इस तरह होगा. एडिंग लाइक फाइनाइट ओपन लूप पोल्स एंड फाइनाइट ओपन लूप जीरोस, उनका सम करके जो ऑड होगा उसके लेफ्ट में रूट लोकस लाइक करेगा. So this is rule number 3. हाँ, ये मैं अभी बताऊंगी इसके बाद, ये जनरली जीरो तक जाता है. ठीक है, अभी इसके बाद. So what actually you asked is this one, what are the starting points and ending points then for the root locus. ठीक है, so root locus begins at 0 gain. अभी हमने देखा ना k is equal to 0 पे. ठीक है, जो हमारा एक्चुअली ओपन लूप पोल्स. ठीक है, so root locus begins at 0 gain, or you can say k is equal to 0, which means they begin at open loop poles, and root locus ends at infinite gain, क्योंकि ऑब्वियसली जितना k बढ़ाएंगे उतना ही तो रूट लॉकस जाएगा ना वहीं पे. और इनफाइनाइट गेन का क्या मतलब है वो हम देखेंगे. So what it means is the root locus begins at the finite and infinite poles of g of s, h of s, which is the open loop transfer function, begins at finite and infinite what use किया है of g of s, h of s, and ends at the zeros of g of s, h of s, which is the open loop transfer function. इसकी भी अंडरस्टैंडिंग उसी से होती है जो बेसिकली तो खेल बता रहा था बुक में, बेसिकली उसकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी हुई है. आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको देखें पहले, उसके बाद समझ में ना आए तो देन आई विल probably tell you why that happens, because that is very straightforward. I want you to put some efforts actually into this, but because rules are important to sketch this, that is enough for us to understand. But if you want to understand why this thing happens, is you may have to go for additional resources like refer to the book. If you don't understand, then I am here to help you. But if you want me to put everything on this, in the lecture, it will be difficult for me to then optimize it, other things. So the rule is that root locus begins at the finite and infinite poles of the open loop transfer function, and it ends at the finite and infinite zeros of the open loop transfer function. इसको दिखाने के लिए मैं फिफ्थ रूल से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा. हाँ, फिफ्थ रूल से पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम जरा आप लोग देख लीजिए. ये मैंने इससे पहले पता नहीं दिखाई कि नहीं. अगर हमारे पास इस तरह का एक ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और ब्लॉक डायग्राम इस तरह इसका. इसमें मुझे बताइए आप जीरोस कौन कहाँ कहाँ है, पोल्स कहाँ कहाँ है,
जरा आप अपने सामने जो आपके नोट्स है उस पर आप बनाइए इसका रूट लोकस ना, सॉरी ये प्लॉट ना पोल्स का, सिर्फ पोल जीरो प्लॉट बोलते हैं उसका, पोल जीरो प्लॉट। अभी सिर्फ आपको ना जो फिक्स पोल्स हैं और फिक्स जीरो उनको बता बनाइए। ये मैं इलस्ट्रेट करना चाहूंगा ये वाला जो फोर्थ रूल है इसी से। बनाया किसी ने? इस तरह आ रहा है कुछ। हम्म हम्म। तो जो रूल आपने अभी तक पढ़े हैं उनके हिसाब से पहला रूल क्या है कि रूट लोकस में कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए? कितने क्लोज लूप पोल है इसमें? नहीं, सॉरी, हाँ इसके अगर आप क्लोज लूप इसी बाई इंस्पेक्शन ही बताइए, क्लोज लूप पोल्स कितने क्लोज लूप पोल्स भी उतने ही होंगे बिकॉज ये ऑर्डर तो सिस्टम का वही रहेगा ना। सिस्टम का ऑर्डर मत चेंज, केस कैसे पोल शिफ्ट मगर ऑर्डर मत चेंज सिस्टम। तो ऑर्डर तो सिस्टम का टू ही रहेगा ना। रूल वन कितने पोल्स हैं? क्लोज लूप पोल्स हैं टू, टू ब्रांच। ठीक है, दो ब्रांच आएंगे रूट लोकस की, हमें पता है, अब दो कर्व्स आएंगे, दो स्ट्रेट लाइन या कुछ आएगा। रूल टू, ये रूट लोकस स्केचिंग के रूल है। रूल टू क्या है? सिमेट्रिक अबाउट, चलो ये हमने मान लिया, जो भी हम बनाएंगे एक ऊपर से नीचे से भी वही बनेगा, इससे भी हमें फिलहाल कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। तीसरा, ठीक है अब बताइए। हाँ गेन बढ़ा, ये हमारे फिलहाल जीरो गेन वाले हैं, ये भी, लेकिन कहाँ से शुरू होता है रूट लोकस? ओपन लूप पोल से, तो मैं इसको रेड से बनाऊंगा, ओपन लूप को मैं रेड से बनाऊंगा, चलो, या जीरो गेन को रेड से। इसका मतलब है हमारा रूट लोकस शुरू कहाँ से होगा? -1 के लेफ्ट में, है ना, क्योंकि अगर हम काउंट करेंगे पोल्स तो या जीरोस तो यहाँ ऑड, और मतलब पहला है तो पहले के बाद में होगा, और थ्री के बाद। इसका मतलब हमारा रूट लोकस जो है, एक तो वो यहाँ कहीं लाई करेगा इधर, और थ्री और फोर के बीच में, बस। है ना? क्लियर? तो रूल टू इज इट इज सिमेट्रिक, ठीक। और रूल थ्री क्या है? लेफ्ट टू द ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। ठीक है, रियल एक्सिस। चलो ये भी हमने कर लिया। रूल फोर क्या है? अभी बताया ना जो मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन से, रूल फोर क्या है? हाँ इसका मतलब रूट लोगो शुरू होता है पोल से, एंड कहाँ होता है? जीरोस पे। इसका मतलब अगर रूट लोकस मैंने कहा यहाँ से मूव कर रहा है पोल से, तो दो पोल्स हैं, जैसे उसमें भी था ना हमने इससे पहले जो देखा, जब हमने देखा था कि रूट लोकस से शुरू होता है पोल से। हमने देखा अभी कि रूट लोकस पोल्स एक था, दूसरा पोल इधर था, तो ये इस तरह चलता है ना, इस तरह चलता है। और जब एक जगह पहुंचता है कहीं पे, या फिलहाल हम वो आगे देखेंगे वो सब चीजें वो कैसे होती हैं, कहते हैं ब्रेक का वे पॉइंट। यहाँ जब पहुंचता है तो फिर ये ऐसे निकलता है, ये दूसरा बॉल बॉल इधर घूमता है, ठीक है। और यहाँ हमने देखा कि क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, ये ओवर डैम्प्ड है, ठीक है, और ये अंडर डैम्प्ड है। ये किसी पॉइंट से ब्रेक अवे करता है, ब्रेक अवे बोलते हैं इसको। किसी वैल्यू ऑफ, यहाँ पे भी कुछ के का वैल्यू होगा, है ना, यहाँ कुछ के की वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ के की वैल्यू होगी, ठीक है। वो के की वैल्यू इसको क्रिटिकली डैम्प बनाएगी, ये इसको ओवर डैम्प बनाएगी, इसको अंडर डैम्प बनाएगी, ठीक है। या आप कोई इस तरह रूट पे जाएगा तो ये अनस्टेबल बनाएगा ये वाला के, ठीक है। So it's not necessary that it has to be straight lines. We'll have to see what, why this is straight line here, why not it is straight line somewhere else. तो अब हमें लेकिन रूल फोर बता रहा है कि सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट
स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पोल्स, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट जीरोस। अब फॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम में हमें जितने पोल्स है उतने जीरोस है, तो इसमें जो है हर किसी सिस्टम में आपको याद रखना है पोल्स और जीरो बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं होंगे तो वो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट पोल्स, या हमारे सॉरी इनफाइनाइट जीरोस और इनफाइनाइट पोल्स बोल सकते हैं उनको। ये भी, इसकी भी जो है काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बुक में दी हुई है। फिलहाल आपको ये मानना है कि इसमें पोल्स और जीरोस लेट से सेम है। इसका मतलब इसका रूट लोकस जो है वो स्ट्रेट लाइन, अब ये क्या होगा, इसका रूट लोकस ऐसे चलेगा, तो इस पोल से चलेगा ना, जैसे अभी यहाँ से चला था, अभी यहाँ से चला था एक पोल और दूसरे पोल से, इससे इस तरह चला था, इससे यहाँ जुड़ गया था ना, फिर वहां से ब्रेक अवे हुआ था। पोल से ही रूट लोकस शुरू होगा, यहाँ से और यहाँ से, फिर वो ब्रेक अवे होगा। दो पोल से मूव कर रहे हैं ना, रूट लोकस में क्या है, जितने पोल है उतना ही मूव कर रहे हैं। हाँ, टर्मिनेटिंग पॉइंट हमारे जीरो है यहाँ पे, टर्मिनेटर को यहीं पे होना, लेकिन कैसे होगा उसके लिए हम पढ़ेंगे और भी चीजें, मतलब जिसको हम कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट्स, और या ना इसकी जो इंटरसेप्ट वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। फिलहाल हमें ये पता है कि ये स्टार्ट होंगे पोल से और एंड होंगे जीरोस के। तो इसको अगर आप इवेलुएट करेंगे एक एक करके गेन डाल के, तो आपको, मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसको ऐसे नहीं देखना कि क्यों हो रहा है, लेकिन ये इस तरह है। मैं एक ब्लू कलर से बनाऊंगा, एक मैं रेड कलर से बनाऊंगा। ये जो माइनस वन था, सपोज माइनस वन मतलब एक पोल, ये आया, यहाँ से मूव किया इसने, ये रेड कलर का बना रहा हूँ मैं, और ये यहाँ से जा रहा है इस तरह, ठीक है, और यहाँ गया, और सपोज ये इस तरह गया, ओके ना, एंड पोल, ये जीरो पे एंड, ठीक है। और जो ये वाला था माइनस टू वाला, ये सपोज निकला इधर से ऐसे, फिर ये इधर गया ऐसे, फिर ये यहाँ पे गया, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक भी है, बिकॉज सेमी सर्कल ऊपर भी है नीचे भी है, और ये स्टार्ट हो रहा है पोल से, एंड हो रहा है जीरो पे, ये भी स्टार्ट हो रहा है पोल से, एंड हो रहा है जीरो पे, और ये ऑड लेफ्ट टू द ऑड ऑफ नंबर ऑफ पोल्स या जीरोस है, वो भी मीट कर रहा है। और ब्रांचेस एक रेड है एक ब्लू है, दो पोल्स दो ब्रांचेस, ये भी मीट कर रहा है। तो ये सारे रूल्स को मीट कर रहे हैं। तो इस ये तो सिंपल है ना, ये अगर इसके जे ओमेगा एक्सिस का, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे भी जो गेन है ना, ये वाला जो मैं इसको मूव कर रहा हूँ हैंड, सारा अंडर डैम्प्ड केस है, यहाँ पे सारा अंडर डैम्प्ड केस है। ये शो है ना ओवर डैम्प्ड, ये पॉइंट है क्रिटिकली डैम्प्ड। अलबत्ता यहाँ पे जो लाइन ऑफ विंकस क्या है ना, ये कांस्टेंट सेटलिंग टाइम या कांस्टेंट क्या है, तो याद सिस्टम उसमें चीज क्या है, तो अगर गेन को खुद कैसे अलवा इस पर सिस्टम पीछे उसमें था, बिकॉज उसमें सिस्टम का नेचर ही वैसा था, ठीक है। फिलहाल चार रूल्स। फिफ्थ रूल इज द रूट लोकस अप्रोचेस स्ट्रेट लाइंस। अभी हमने स्ट्रेट लाइन देखा पिछली बार एक रूट लोकस का, ये वाला मैंने शुरू में दिखा था आपको, अभी जरा पे भी दिखा आप लोगों को। अभी हमने देखा था एक सिस्टम में, ये आपको अगर याद होगा, -10 और -1 वाला, -0 वाला, उसमें कैसे आया था रूट लोकस, ऐसे ही चला था, फिर ऐसे, है ना, ये आप लोगों को याद है, जो ना अभी मैंने दिखाया था कि बाई एस इंटू एस प्लस 10 जी ऑफ एस। इस केस में एक पोल जीरो पे एक -10 पे है, तो ये लेकिन मूव कर रहा है, हमने देखा लास्ट टाइम इवेलुएट करके एक एक वैल्यू डाला ना हमने, देखा -25 पे ऐसे हो रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है वो पता ही नहीं है, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ये कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने देखा, जिसको हमने प्रूव नहीं किया, लेकिन हमने देखा यहाँ पे इसका रूट लोकल जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, और वो कहीं जा रहा है, मतलब फाइनाइट जगह पे, और वो इनफाइनाइट जगह पे जा रहा है, तो ये बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस थिंग। द रूल फिफ्थ, द रूट लोकस अप्रोचेस स्ट्रेट लाइंस। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना इस केस में, जो भी मैंने देखा एस प्लस 10 में, रूट लोकस अप्रोचेस स्ट्रेट लाइंस एज एजिम्पटोट्स कहते हैं इनको, एज द लोकस अप्रोचेस इंफिनिटी। ऑब्वियसली वो इंफिनिटी गेन है,
लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे ये जब इन्फिनिटी पे जाएगा, गेन भी इन्फिनिटी है उस वक्त, ठीक है, और ये जीरो गेन है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, इस केस में हम देखेंगे, इस केस में आप देखेंगे हमारा यहाँ पर जो है फाइनाइट जीरोस है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो हमने सिस्टम आपको दिखाया था, यहाँ पे जीरो क्या था, जीरो अगर देखा जाए बाय डेफिनेशन यहाँ पे है ही नहीं कुछ। लेकिन अगर आपको याद होगा पहले कुछ लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था तो शुरू में क्लास में, जीरोस किसे कहते थे, मतलब बाय डेफिनेशन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफर फंक्शन को क्या होना चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन में जीरोस और ये क्या था, हाँ, ट्रांसफर फंक्शन जहाँ इन्फिनिटी हो जाता है वो क्या है, पोल्स। जहाँ ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाए वो क्या है, जीरो, ठीक है। सुना बेसिक डेफिनेशन असली ये, तो अगर वो जी ऑफ एस का नियमन बराबर एस है, इसमें जीरोस क्या होंगे, हम्म, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा खुद भी एक बार आपसे, एक से मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट करता है। फंक्शन, इफ ए फंक्शन अप्रोच ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच इन्फिनिटी, ठीक है, as and then the function has a pole at infinity. I think we have to use this definition. A function approaches infinity as s approaches infinity, then the function has a pole at infinity. Because हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, इन्फिनिटी होना चाहिए, वही पोल की डेफिनेशन है, ठीक है। If a function approaches zero, ट्रांसफर फंक्शन approaches zero, ठीक है, then the function has a zero at infinity. थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन इसकी मतलब ये इसी के अंदर है, बिहेवियर एट इन्फिनिटी में इसकी डेफिनेशन है बेसिकली। इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे द रूट लोकस अप्रोच, एक सेकंड आसान होने दें, थोड़ा आसान जल्दी हो गया आज, एक एक मिनट दे दो मुझे। मेरी क्लास में रजिकर आप जाओ थोड़ी देर, 5-10 मिनट, 5 मिनट मैंने कहा ना, नहीं जाओ इस वक्त मत बोलो ये सब बातें हर रोज हर रोज। तो मेरी क्लास है, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ी जानबूझ के कहूँगा। ऑलराइट, तो बेसिकली ये डेफिनेशन है जो अभी हमने डिस्कस की, यही है कि द फंक्शन शुड अप्रोच और ट्रांसफर फंक्शन शुड अप्रोच जीरो for a given value of s,
एंड पोल्स फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सपोज अगर इसमें g ऑफ एस इज इक्वल टू एस की हम बात करें, अगर कोई फंक्शन इस तरह है, बेसिकली दिस इज हाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। नाउ when will this approach to infinity? Because by definition poles are those we have transfer function approach infinity. When will this function approach infinity? hmm? For which value of s? नहीं, हाँ सुना, इस्तवो s जन ची infinity, अगर s ची infinity g of s क्या है, बोला ये डेफिनेशन कसा पूर छना, छना कसा ये डेफिनेशन पूर, वो s is s at infinity is can be considered as a pole। ठीक है, यह फंक्शन इसका होता है। अगर फंक्शन g of s is equal to 1 by s, इस केस में बताओ, हम्म, फिर से देखो, अगर पोल लोगे आप इन्फिनिटी, मतलब अगर से एस सॉरी एस एट एस की बात करो, अगर एस आप लेंगे इन्फिनिटी, हाँ अगर एस लेंगे इन्फिनिटी, वो क्या आएगा, जीएस, जीएस आएगा जीरो। अगर एस निमोल जीरो, चलिए जीएस ही इन्फिनिटी। सो दैट इज ट्रू बिकॉज दैट वी नो दैट इसका पोल जीरो पे होगा, है ना, स्पाई जीएस इन्फिनिटी एस इज इक्वल टू जीरो पर जीएस इन्फिनिटी ना, क्लियर एस गॉडी फॉर्म होते हैं, समझ में होती है अच्छा एस इक्वल टू जीरो ना सर। अगर भी आती है एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जीएस के इज जीरो, और जीएस जीरो का भी डेफिनेशन છે जीरो को आज एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर तेली जीरो। ठीक है, या टाइप ऑफ फंक्शन है एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोल। फिलहाल थे तीन साइड में थोड़ा बहुत हमको अंडरस्टैंडिंग, तो हमारा ये है कि द रूट लोकस अप्रोचेस स्ट्रेट लाइंस as asymptotes as the locus approaches infinity. Further, the equation of the asymptotes is given by, we have यही जो आपका फंक्शन है, अभी मैंने जो दिखाया आपको, करेंगे अभी जो आपने देखा था k by s into s plus 10 g of s, ये एग्जांपल। तो इसमें कितने पोल्स थे, ओपन लूप पोल्स, ठीक है, लेकिन आपने देखा बाद में इसका क्या हुआ, तो जीरो पे था और -10 पे था, ये कुछ इस तरह चला, जब हमने एक को एक करके वैल्यू डाला, ये आके मूव कर रहा है, एक पॉइंट पे पहुंच के ब्रेक अवे हो गया, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, है ना। अब ये कहाँ जा रहा है, के जितना हम बढ़ाएंगे कहाँ जा कर रहा है, ये पहले इन्फिनिटी में जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, के इक्वल टू जीरो था यहाँ पे, है ना, और के मूव कर रहा है, के बढ़ रहा है, के भी क्या हो रहा है फिर, के भी लगभग इन्फिनिटी पे जाएगा, है ना। और हम क्या कह सकते हैं, एस क्या होगा वहां पे, एस भी इन्फिनिटी होगा, बिकॉज एस का जो इमेजिनरी वैल्यू वो क्या होगा, अगर रियल इंटरसेप्ट कुछ है उसका, लेकिन इमेजिनरी वैल्यू क्या होगा उसका, इन्फिनिटी, है ना। ठीक है, तो इसका इस फंक्शन की हम कह सकते हैं फिर, क्योंकि हमारे दो जीरोस है ना, सॉरी दो पोल्स हैं, वी हैव टू जीरोस एट इन्फिनिटी। और जो हमारा रूल नंबर हमारा 4 है, उसमें क्या था, एंडिंग पॉइंट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट जीरोस, क्योंकि इसमें फाइनाइट जीरो कोई है ही नहीं, तो इसमें इनफाइनाइट जीरोस होंगे, और वो कहाँ ले रहे हैं इसको, तो वही ये ऊपर जा रहा है ना, उनकी तरफ जा रहा है, जीरोस पे जो इन्फिनिटी पे है सब, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो कहते हैं हम एसिम्प्टोट्स और स्ट्रेट लाइंस। अब ये कहाँ पर सपोज करेंगे ब्रेक अवे, और ये एंगल कितना बनाएंगे, ये कभी एसिम्प्टोट्स इस तरह भी जा सकते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है,
एसिम्पटोट्स कभी इस तरह भी जा सकते हैं, एसिम्पटोट्स इस तरह भी जा सकते हैं। ये एंगल एसिम्पटोट्स कितना बना रहा है, ठीक है, और किस जगह पे एसिम्पटोट्स बाहर निकल रहे हैं, उसको कहते हैं रियल इंटरसेप्ट। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो होगा उसका, सपोज अगर ये इस तरह होते, सपोज यहाँ पर निकलता है एसिम्पटोट बाहर इस तरह, एक था उसका रियल इंटरसेप्ट क्या है सिग्मा, उसका एंगल क्या है, ये हम ढूंढ सकते हैं बाय रूल नंबर 5, which is real intercept sigma a is given by summation of finite poles minus summation of finite zeros divided by the number of finite poles minus the number of finite zeros. इसकी भी derivation है, don't have to go into that at least in this course, but we can maybe if you are interested. And angle is given by an odd multiple of 180 divided by number of finite poles minus number of finite zeros. ठीक है, where k obviously is the way it was for the angles in the previous one. All right, तो इस वाले फिफ्थ को यानी फिफ्थ वाले कॉन्सेप्ट को जो है इलस्ट्रेट करने के लिए एग्जांपल्स हैं। मुझे लगता है टाइम अब हो गया आप, लेकिन इनको लिखिए जो मैंने एग्जांपल्स करानी थी, हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में एक कराऊँ इंशाल्लाह, तो आप इनको लेकिन लिख के रखिए, आप इनको ट्राई कीजिए। एक तो पहले अब ये कुछ मैंने ऐसी प्रॉब्लम लिखी थी, मैं उसको थोड़ा सा इस तरह फॉर्म में रखूंगा। इन 3 प्रॉब्लम्स को आप नोट डाउन कीजिए, या एक सेकंड इसमें एग्जांपल्स की कौन सी जरा इन 3 प्रॉब्लम्स को आप नोट डाउन कीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले देना। जी हो गया, और कुछ और भी है, एक सेकंड तो भी थोड़ा सा लीजिए अपने पास काइंड ऑफ लिटिल होमवर्क नॉट एन असाइनमेंट, कैन ट्राई दिस क्विकली। इनको भी, ये अलग प्रॉब्लम्स है, इनको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उनकी, कैन एक्चुअली ट्राई ड्राइंग रूट लोकस विद देम। तो इन प्रॉब्लम्स में आपको रूट लोकस ही स्केच करना है, ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे और जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे आप मुझे फ्राइडे को बताएंगे, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन आप इसको ट्राई, तब तक आप ट्राई कीजिए इसको, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको टाइम इसके लिए निकालना है। फ्राइडे तक आप मुझे बताएंगे इसमें किस में डाउट था, उसको हम सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है। तो इन 6 प्रॉब्लम्स में आपको जहाँ डाउट लगेगा, प्रॉब्लम्स लगी, वो हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे फ्राइडे को इंशाल्लाह, ठीक है। So one last thing that I wanted to maybe announce to you, अभी आपके जो मिड टर्म हुए हैं वो तो उसमें कुछ लोगों का परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन बहुत सारों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। See later on what to do with that, because many of you are failing, and if you fail you are actually not eligible for the end term, that you must be now clear with. Second thing is regarding your assignments, I generally do have a habit of actually taking a quiz rather than evaluating assignments, because I give assignments in batches. Assignment actually is purposefully given so that you solve them and then understand the concepts. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं आपको, जैसे फ्राइडे है, इस तरह मंडे है, आपको just one day before I'll probably put it in Google Classroom and maybe to the CR also through WhatsApp, ठीक है, कि आपका जो असाइनमेंट है फला असाइनमेंट नंबर 2 या 3 उसका मैं क्विज करूँगा, ये मैं ऑनलाइन ही रखूँगा। So based on the requirements of time that I can estimate it will take you, I'll ask you to solve it, and then uh, you know maybe in the class only, I will not take another slot for it. जैसे हमारी क्लास शुरू होती है फ्राइडे को 2:30 बजे, तो अगर फ्राइडे को मुझे करना है तो मैं थर्सडे को आपको अनाउंस करूंगा, और फ्राइडे के दिन 2:30 बजे जो क्लास है मैं 2:30 बजे से 2:45 तक ये एग्जाम करूंगा, और उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। तो ऐसे ही मैं नहीं, मुझे बेसिकली देखना है बेसिकली 2-3 असाइनमेंट्स कम से कम, सो दैट आई दोस 10 मार्क्स that are actually supposed to 20 marks for assignment. I'll just see how I do it finally. Maybe attendance also I'll give some weightage.
तो तब तक मैं कुछ 2-3 क्विज तो मुझे करनी पड़ेंगे कम से कम। तो हो सकता है कुछ असाइनमेंट्स को मैं बेसिकली क्लब करूँ, वो मैं आपको बताऊंगा एज एन व्हेन आई बेसिकली टेक इट, कि आपके कौन कौन से है ना असाइनमेंट्स का ये क्विज होगा। तो उसमें मैं एमसीक्यू या हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला कुछ रखूंगा असाइनमेंट्स के ही रिलेटेड। लेकिन असाइनमेंट्स कॉपी पेस्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो असाइनमेंट में जैसे कहीं मैंने जी ऑफ एस+2 है तो मैं एस+3 भी लिख सकता हूँ। इस तरह की मामूली चेंजेस मैं कर सकता हूँ। सीधे असाइनमेंट का आंसर नहीं होगा कि वो आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है, बल्कि थोड़ा सा आपको इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने असाइनमेंट सॉल्व किया है तब आप वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू बेसिकली इवैल्यूएट फ्रॉम यू। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक दिन पहले बताया करूंगा थ्रू सीआर एंड ऑल्सो थ्रू गूगल क्लासरूम। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू।